السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، محترم روزہ دارو، سامعین باوقار، رمضان المبارک کے مسائل کے تعلق سے خاکسار کا یہ 22واں درس ہے جو خواتین اور نماز تراویح کے متعلق ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ نصوص شرعیہ میں جہاں کہیں کسی عمل پر ثواب یا عذاب کا تذکرہ ہے وہ مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے جو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، کسی مخصوص موقع پر اگر عورت کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی ضرورت ہوئی تو عورت کو اسے الگ بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حکم میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان میں جو مخصوص مسائل ہیں اس کا حکم بھی مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے تو آپ ازواج مطہرات کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت الاشهر الاواخر من شہر رمضان ایقظ اہلہ واحیا اللیل وشد المئزر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رمضان میں مخصوص عبادت میں ایک عبادت تراویح کی نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ جس نے ایمان و ثواب کی امید پر رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کا یہ حکم جس طرح مردوں سے متعلق ہے اسی طرح بھی عورتوں سے بھی متعلق ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب میں ہے التراویح سنۃ مؤکدہ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا، کہ تراویح کی نماز مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ماہ رمضان میں یہ سوال ہر بار اٹھتا ہے کہ خواتین تراویح کے لیے کیا کریں، ان کا مسجد میں نماز کے لیے جانا کیسا ہے۔ اس سلسلہ میں واضح ہے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین رات میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خاطر ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ ان کی صفوں اور مردوں کی صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا تھا اور درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ عورتوں کو حکم تھا کہ سجدے سے سر دیر میں اٹھائیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مردوں سے پہلے سجدے رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ نماز کے بعد موقع دیا جاتا تھا کہ عورتیں پہلے نکل جائیں، مرد کچھ دیر کے بعد نکلتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیرتی تو اٹھ کھڑی ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد یعنی صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح ہے۔ اس زمانے میں بھی بعض لوگ عورتوں کا مسجد جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کی کہ اپنی پسند و ناپسند کا معیار بنا کر عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کی عبادیوں یعنی خواتین کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ استاذنکم نساؤکم باللیل الی المساجد فآذنوا لہن۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں اور مساجد میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی نماز باجماعت کا جواز احادیث صحیحہ اور آثار سلف صالحین سے ثابت ہے۔ ثبوت کے لیے بعض احادیث درج ذیل ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم کی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी इसको जगह दिया है। इस हदीस से ज़ाहिर है कि औरतों का मसाजिद में नमाज अदा करना जायज़ है, बल्कि दौर नबी में साबित है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को मस्जिद से न रोको और उन्हें बगैर खुशबू के सादा कपड़ों में निकलना चाहिए। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में दाखिल होता हूँ और लंबी नमाज पढ़ने का इरादा करता हूँ, फिर मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके रोज़े की वजह से उसकी माँ को तकलीफ़ होगी। मज़कूरा अहादीस और दीगर रिवायात का ख़ुलासा यह है कि औरतों के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि औरतें अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें, क्योंकि उन पर नमाज बाजमात फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नमाज फ़र्ज़ हो या नफिल औरत का घर में नमाज अदा करना मस्जिद में नमाज अदा करने से अफजल है, और इसी हुक्म में तरावीह की नमाज भी शामिल है। मस्जिद में औरतों को नमाज अदा करने की इजाज़त हमेशा से रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद नबवी में आकर न सिर्फ नमाज बल्कि खुतबा में शरीक हुआ करती थी, और ये मामूल अहद नबवी के पूरे दौर में रहा है। हदीस और सीरत की किताबों में उसकी बारीक तफसीलात मौजूद मिलती हैं, जिनसे मालूम होता है कि औरतें न सिर्फ नमाज और इल्मी मजलिसों में शरीक हुआ करती थीं, बल्कि वो सवालात भी करती थीं और अपनी राय भी दिया करती थीं। यही तरीक़ा खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी जारी रहा। इस्लामी शरीयत ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना मर्दों के लिए तो लाजिम करार दिया, उसके बिलमुकाबिल मस्जिद में औरतों के लिए नमाज में शिरकत को लाजिम और ज़रूरी नहीं बनाया गया। वाज़ेह रहे कि औरत के लिए नमाज अदा करने की बेहतर जगह उसका अपना घर, और घर का भी वो हिस्सा जो ज़्यादा महफूज व मस्तूर हो और उसमें अदना भी बेपर्दगी का अंदेशा न हो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी हुज्रतिहा व सलातुहा फ़ी मख्तइहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी बैतिहा। औरत का अपने कमरे में नमाज़ पढ़ना अपने घर की चार दीवारी में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और उसका पिछले कमरे में नमाज़ पढ़ना अगले कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आपकी तरफ से औरतों को शराइत के साथ मस्जिद में आने की इजाज़त के बावजूद औरतों के लिए घरों में नमाज़ पढ़ने को आप पसंद फरमाते थे। चुनांचे मुस्नद अहमद में हज़रत उम्मे हुमैद साइदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना पसंद करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरे साथ नमाज़ पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और घर के सहन में नमाज़ पढ़ना घर के अहाते में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अहाते में नमाज़ पढ़ना अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई और उस जगह नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिली। घर में ख़वातीन को काफ़ी तादाद हो तो उनके साथ बाजमात तरावीह अदा करने में भी कोई हरज नहीं है। इमामत करने वाली खातून औरतों के दरमियान में खड़ी होकर कुरान मजीद की तिलावत करेगी। इसी तरह मस्जिद में औरतों की जमात के साथ औरत के लिए तरावीह या दीगर नमाज़ें पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बल्कि अगर लंबे क़याम वाली नमाज़ों में औरत का मस्जिद में नमाज़ें बाजमात अदा करना ज़्यादा जोश और जज्बे का बाइस हो तो ये अच्छा अमल है। अगरचे औरत का घर में नमाज अदा करना चाहे नमाज फ़र्ज़ हो या नफिल, मस्जिद में नमाज अदा करने से उसूली तौर पर बेहतरीन अमल है। याद रहे, एक औरत मुंदरजा झैल शराइत शुरूत पर अमल करके मस्जिद जा सकती है। नंबर 1, मुकम्मल और पूरी बापर्दा होकर निकले। नंबर 2, खुशबू और इत्र वगैरह ना लगाया हो। नंबर 3, खाविंद की इजाज़त से जाए। नंबर 4 उसके निकलने में कोई और हराम काम मसलन ड्राइवर के साथ खलवत और अकेले जाना वगैरह ना हो। नंबर 5, औरत पाक हो। ये हुक्म मर्दों के लिए भी है। अगर इन मज़कूरा अशिया में से औरत ने किसी की भी मुखालफत की तो खाविंद और उसके सरबराह को मस्जिद जाने से मना करने का हक़ हासिल है, बल्कि उस पर उसे मना करना वाजिब है। लेकिन अगर औरतें
शरई हदूद में रहकर मसाजिद की नमाज बाजमात में शरीक होने की ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाने चाहिए। मस्जिद के किसी हिस्से में दीवार खड़ी करके या मोटा पर्दा लगाकर या मस्जिद से मुत्तसिल कोई कमरा तामीर करके उस हिस्से को उसके लिए मखसूस किया जा सकता है। इस मसले में ज़रा गौर और फैसला करते वक्त रूह शरीयत को ज़रूर अपने पेश नज़र रखना चाहिए। दीन का मिजाज अजनबी मर्दों और औरतों के दरमियान इख्तलात को नापसंद करता है, साथ ही औरतों के लिए पर्दे के हदूद मुतय्यन करता है। जिन मसाजिद में औरतों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हों और इख्तलात के मौक़े मसदूद कर दिए गए हों, उनमें वो पर्दा और दीगर शरई हदूद व क़यूद के साथ नमाज बाजमात या तरावीह की अदायगी के लिए जा सकती हैं। लेकिन जिन मसाजिद में ऐसा कोई इंतज़ाम ना हो उनमें उन्हें जाने से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को भलाई की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।